All right, Ji. So the last thing we did in our last lecture and video was we were doing PPC, and this is, I believe, PPC part 5 or 6. Not sure about that, but हमने पढ़ क्या लिया था पीपीसी के बारे में सारा देख लिया था. जस्ट recap because there was a weekend in the class which is ongoing. So PPC was a graph that shows different combinations of two goods that can be produced utilizing all available resources. ठीक है. All the combinations on the line represent full employment. ये खैर आज हमने थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में देखना है. All combinations inside the PPC like this one represent underemployment, inefficiency, productive inefficiency to be specific, and all the combinations outside the PPC represent unattainable. Are unattainable. Why? Because we don't have enough resources to produce them. ठीक हो गया. उसके बाद हमने देखा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हमने सिंपल चीजें देख ली थी, कुछ हमने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी कर ली थी. ये तो सिंपल है, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है. स्टैटिक डेटा होता है तब भी हमने देख लिया था वेयर रिसोर्सेज आर नॉट बीइंग reallocated from one part to another, one industry to another. इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये थी, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये थी, इस सब की ये थी, और इस सब की ये थी. फिर हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियोज देख लिए थे. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियोज के बाद हमने शेप ऑफ द पीपीसी भी देख लिया था कि ऐसा इसका इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों होता है और इसका कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों होता है. फिर हम आ गए इकोनॉमिक ग्रोथ पे. इकोनॉमिक ग्रोथ हमें पता चला दो किस्म की है. एक है एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ वेयर दी योर the point move towards on the या पे towards the PPC. This is actual economic growth where GDP actually increases, and this is potential economic growth. इसके तीन रीजन थे. क्या तीन रीजन थे? इंक्रीज इन anyone? Resources. Increase in quantity of resources, quality of resources, and technological advancement. So these were the three reasons which shifted the productive capacity, which increased the productive capacity. फिर उसके हमने रीजंस देख लिए थे, फिर हमने पिवटल शिफ्ट्स भी देख लिए थे. चलें जी, आज पीपीसी खत्म है, थोड़ा सा रह गया बस. टुडे वी आर डन इंडस्ट्रियल विद पीपीसी. फिर हम सीधा ऐसे क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं. चलें जी. सो वील बिगिन विद, अब दो तीन तीन छोटे कॉन्सेप्ट्स रह गए और तीनों छोटे, और मेरा ख्याल से नेक्स्ट लेक्चर विल बी प्रैक्टिसिंग द 8 मार्कर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. चलें जी, कहानी शुरू करते हैं आज की. अनएम्प्लॉयमेंट illustrated on PPC. And when we say unemployment, we are not only referring to labor, we are talking about all the factors of production: land, labor, capital, enterprise. Unemployment illustrated on PPC. नहीं जी, ये बहुत आसान है, ये हमें पहले ही पता है. लेकिन इसको एक दफा रीइंफोर्स कर लेते हैं और प्रॉपरली लिख लेते हैं अंडर द हेडिंग, सो दैट व्हेन वी आर रिवाइजिंग these notes for our exams हमें पता हो. So here on the y-axis we have consumer goods. Here on the x-axis we have capital goods. यहाँ पे आगे consumer goods and capital goods. कोई भी PPC बना ले, increasing opportunity cost, constant opportunity cost, doesn't matter. Let's suppose this is point A where resources are unused and are not being fully utilized. The closer you move to the origin, to the, what do you call it, the PPC, this A to B has resulted in what? Unemployment को क्या हुआ? Anyone tell me? बढ़ गई है, कम हो गई है? Are we utilizing more resources than before or less? We're now utilizing more resources than before. So unemployment has decreased. If we move from A to C, what happens? Unemployment increases. Yes. और या फिर employment उल्टा भी कह सकते हैं. ये A to C में हम ये भी कह सकते हैं employment गिर गई है. ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो जाना. हाँ जी, is this clear? Have you seen anything more easier than this? Anyone who does not get this? किसी को ये बात ना समझ आई? It's as simple as that. चलें जी. सिमिलरली एक और बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट पीपीसी का, वो क्या है?
Scarcity explained on PPC. Scarcity illustrated on PPC. हाँ जी, so here again we have consumer goods. We can take good A and good B as well, लेकिन बेहतर है आप मैक्रो की बात कर रहे हैं तो कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स लें या फिर एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल गुड्स लें। जब भी एक बड़ा कॉन्सेप्ट विच इज स्प्रेड ऑन द मैक्रो इकोनॉमी हम शो कर रहे हैं तो बेहतर है यू टेक दीज गुड्स। All right, can you tell me what about all these combinations which were outside the PPC? इनका क्या सीन था? Can you please tell me about that? Unattainable. They were unattainable Yes, they are unattainable. And why were they unattainable? because we don't have the resources to produce them. Yes, and what does that mean? That means There's scarcity of resources. there is scarcity of resources. We don't have enough resources to produce all the combinations which are outside the PPC. Hence, can I say that this entire area outside the PPC represents what? Scarcity. क्या मैं कह सकता हूं ये सारा एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? Scarcity. All these combinations are unattainable. Why? Because we don't have enough resources to produce them. लेकिन जी all combinations outside the PPC सर ऑल की जगह एनी का वर्ड यूज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? एनी कॉम्बिनेशन या ऑल कॉम्बिनेशंस आउटसाइड द पीपीसी represent scarcity of resources as the quality and quantity of resources required to produce them is not sufficient. इसीलिए सारे combinations outside the PPC unattainable हैं because we don't have enough resources to produce them. Do we get this? Is this clear? अच्छा, ना सिर्फ ये सारा एरिया जो पीपीसी के बाहर है ये स्कार्सिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, बट द फैक्ट दैट व्हेन यू आर एट फुल एम्प्लॉयमेंट and let's suppose you are producing K1 of capital goods and C1 of consumer goods, we are at X, and you want to increase the production of, you want to reallocate resources and you want to increase the production of capital goods, and the fact that you have to reallocate resources, क्योंकि हम इसको इधर तो नहीं लेके जा सकते कि इतना ये बनता रहे और हम इसको इतना बना लें। तो in order to increase the production of capital goods from K1 to K2 हमें क्या करना पड़ेगा? We'll have to take out resources from the production of consumer goods from C1 to C2. So the fact that we face opportunity cost when we are at full employment is also a representation of scarcity, that resources are scarce and you weren't able to produce more of capital goods without giving up some units of consumer goods. So the fact that the opportunity cost exists is also due to स्कार्सिटी। तो ये दोनों तरीकों से स्कार्सिटी दिखाई जाती है और आपने दोनों से दिखानी है। क्वेश्चन आया है स्पेस से का। आएंगे नहीं। द फैक्ट दैट वी फेस opportunity cost to increase the production of one good या industry,
we have to forego the production of the other good. Production of the other good या industry. The fact that we face opportunity cost to increase the production of one good in industry, we have to forego the production of other good in industry, is also an indication of scarcity. Do we understand this? तो दो तरीके से आप scarcity दिखा सकते हैं. एक तो opportunity cost कि आप इसको increase करने के लिए you have to give up that much of वो उसका, and अच्छा I will do that Musa. And दूसरा तरह क्या कि all the area outside the PPC is also what do you call it, because of the opportunity, because of scarcity. Do we understand this? Is this clear everyone? तो scarcity कैसे दिखाई जा सकती है? ये जो reallocation हो रही है जिस वजह से, वो क्या है? Reallocation की वजह ही scarcity, because we didn't have enough resources. अच्छा जी, last but not the least, छोटा सा एक और कॉन्सेप्ट लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है. Future growth versus current living standards. Future growth versus current living standards. अच्छा जी, अब जरा इस चीज को समझते हैं. पीपीसी हमें एक और चीज देखने में हेल्प करता है, विच इज फ्यूचर ग्रोथ एंड करंट लिविंग स्टैंडर्ड्स को समझने में भी हेल्प करता है. कि बेसिकली बात तो वही है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाली, ट्रेड ऑफ वाली. इधर हम ले लेते हैं कैपिटल गुड्स, इधर हम ले लेते हैं कंज्यूमर गुड्स, एंड दिस इज आवर पीपीसी. Now before we go into a little detail of this, पहले हम समझ लेते हैं कि कंज्यूमर गुड्स जो हैं ये क्या करते हैं. The quality and quantity of consumer goods decide the living standards of an economy. Living standards are directly dependent on the quality and quantity of goods and services produced. Quality and quantity of which goods and services that are produced? Of consumer goods. Quality and quantity of consumer good produced in an economy. तो एक इकोनॉमी के अंदर the quality and quantity of consumer goods decide कि इस इकोनॉमी का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है. The quality of food we eat, the quality of whatever it is, इलेक्ट्रिसिटी ले लें, एजुकेशन ले लें, सड़कें ले लें, गाड़ियां ले लें. ठीक है, आपकी भी यूरोपियन स्कैंडिनेवियन कंट्री देखेंगे, उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स is far more better than the quality and quantity of consumer goods that we have. Hence, the living standards are different. On the other hand, investment क्या होती है? How do you define investment in economics? Investment is, it is planned expenditure by firms on capital goods. ठीक है, तो याद रखें एक कंट्री का स्टॉक ऑफ कैपिटल क्या होता है? इट इज इन्वेस्टमेंट, विच इज व्हाट, नए कैपिटल गुड्स जो बन रहे हैं
माइनस कैपिटल कंजम्पशन, जिसको आप एक और नाम से भी जानते हैं, विच इज डेप्रिसिएशन। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं इसकी जरा चार्जिंग केबल लगा दूं। ठीक है, एंड दूसरी तरफ क्या है, स्टॉक ऑफ कैपिटल। ठीक है, स्टॉक ऑफ कैपिटल क्या है, लेट सपोज एट द ईयर एंड, ईयर स्टार्ट, हमारा स्टॉक ऑफ कैपिटल था $40 मिलियन का, नई इन्वेस्टमेंट हुई $7 मिलियन की, नए कैपिटल गुड्स, दैट इज इन्वेस्टमेंट, और कैपिटल कंजम्पशन या डेप्रिसिएशन थी 3 मिलियन की। कैन यू टेल मी अगले साल स्टॉक ऑफ कैपिटल क्या होगा? 10 मिलियन डॉलर्स। कम ऑन, अगले साल क्या होगा? इन्वेस्टमेंट क्या होती है, नए कैपिटल गुड्स बन रहे हैं। डेप्रिसिएशन, यू अंडरस्टैंड व्हाट डेप्रिसिएशन इज? यस। डेप्रिसिएशन फोर इज खराब हो गई, 3 खराब हो गई, फोर तो स्टॉक ऑफ कैपिटल अगले साल 4 मिलियन फोर 44 मिलियन ऐड हो जाएगा, एंड इट विल बी $44 मिलियन। ठीक है, सर लेकिन अगर मैथमेटिकली देखें तो 4 जो आएगा वो 44 से डिवाइड नहीं होगा। हैं? यस सर, वो स्टॉक ऑफ कैपिटल के आगे इक्वल्स टू नहीं है, इक्वल्स टू है, तो 4 को 40 से डिवाइड ना चाहिए क्यों होना चाहिए? सर, क्योंकि वो दूसरी साइड पे आ जाएगा। दूसरी साइड पे लाके करना क्या, स्टॉक ऑफ कैपिटल है, ये तो बहुत सिंपल सी बात है यार, क्या मैथ्स में तुम फंस रहे हो? 40 मिलियन का अच्छा स्टॉक ऑफ कैपिटल है हमारे साथ। ठीक है, जी एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर 40 मिलियन वर्थ की मशीनें हैं, इस तरह समझो। ठीक जी है, जी। समझ आई? नई मशीनें बनी इस साल कितनी? 7 मिलियन, तीन, सात उसमें से मिलियन 3 मिलियन की फारिग हो गई, तो मुझे जी। साल के एंड पे बताओ कितना स्टॉक रह जाएगा? 44 मिलियन। 44 मिलियन, सिंपल एज दैट। ठीक है, डू वी अंडरस्टैंड दिस? तो अब हमें पता चल गया है कि कैपिटल इज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। व्हाई? क्योंकि बाकी तीन एक तरह से नेचुरल एलिमेंट है उसमें, वो फैक्टर एंडाउमेंट पे डिपेंड करते हैं। किस पे होते हैं? फैक्टर एंडाउमेंट पे डिपेंड करते हैं, मतलब अल्लाह ताला ने जिस तरह चलाया है निजाम। एक्सेप्ट फॉर कैपिटल, कैपिटल इज वन ऑफ दोज रिसोर्सेज जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जो हम खुद बना सकते हैं। आई बात समझ में? तो अब आ जाए, अब ये हमने क्यों समझा। अब एक कंट्री है जो कि क्या करती है, जो अभी इधर है, ठीक है, यहां पे अभी है, ये उसके कैपिटल गुड्स हैं और ये उसका कंज्यूमर गुड्स हैं। C1 ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड K1 ऑफ कैपिटल गुड्स। नाउ वी डिसाइड कि वी वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स, जो कि पाकिस्तान ने हमेशा किया है। ठीक है, हमें करना क्या पड़ा, उसके लिए मूवमेंट आ गई, मूवमेंट अलोंग द कर्व आ गई। कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन हमने बढ़ा दी, व्हाट विल हैपन टू द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स? वो गिर गई। अब जब आपने कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन बढ़ा दी तो क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? हमारा लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ गए, लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ गए, वी आर एंजॉयिंग high living standards. Why? Because obviously we are producing more cell phones, more cars, more houses and all that stuff. लेकिन what is the cost we have to bear for this? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अब देखें। The cost is कि capital, which is one of the factors of production, falls. अब आप मुझे बताएं, जब क्वांटिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गिरता है तो पीपीसी के ऊपर क्या होता है? बताएं, क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जब गिरता है तो प्रोडक्टिव कैपेसिटी को कुछ होता है? व्हाट यूज्ड टू हैपन? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की क्वांटिटी रिसोर्सेज की बढ़ती थी या क्वालिटी बढ़ती थी, पीपीसी बाहर मूव होता था। जब इनकी क्वालिटी या क्वांटिटी कम होगी तो क्या होगा पीपीसी को?
पीपीसी इनवर्ड्स मूव करेगा। पीपीसी इनवर्ड शिफ्ट करेगा बिकॉज कैपिटल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। डू यू रिमेंबर दैट? ठीक है, तो पीपीसी फ्यूचर में क्या होगा? इनवर्ड शिफ्ट होगा। और जब ये फ्यूचर में इनवर्ड शिफ्ट होगा तो यू वॉन्ट बी एबल टू एंजॉय द लिविंग स्टैंडर्ड, ये देख रहे, विच यू आर करंटली एंजॉयिंग। डू वी अंडरस्टैंड दिस? तो देयर इज अ ट्रेड ऑफ कि अगर आप ज्यादा अय्याशी चाहेंगे आज तो उसका नुकसान क्या है कि आपको कैपिटल गुड्स गिव अप करने पड़ेंगे, और कैपिटल गुड्स जब आप गिव अप करेंगे तो आपका प्रोडक्टिव कैपेसिटी इफेक्ट होगी। बात समझ में आई है? सो देयर इज अ ट्रेड ऑफ, इफ यू इंक्रीज योर लिविंग स्टैंडर्ड्स टुडे यू विल सफर। दिस इज द केस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, एज रिसोर्सेज, इसकी थोड़ी सी अंग्रेजी लिख लेते हैं, were reallocated from the production of capital to consumer goods, the current living standards increased. However, as the opportunity cost of this was a decrease in investment, decrease in investment, या फिर ये भी कह सकते हैं decrease in capital goods the productive capacity in the future is likely to fall। ये हुआ है पाकिस्तान में। हमने, मार्की वालों ने पैसे कमाए, हॉस्पिटल्स ने पैसे कमाए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ने पैसे कमाए, प्राइवेट सेक्टर में कोई इंडस्ट्री नहीं बनी, लिविंग स्टैंडर्ड हाई थे, हर बंदा आईफोन लेके फिर रहा है, हर बंदा एक इशारे पे 10-10 लैंड क्रूजर्स हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? लिविंग स्टैंडर्ड्स एंजॉय करते रहे हम और वो सब इंपोर्ट हो रहा था, और अंदर ही अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई पाकिस्तान में। हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी एज फार एज टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल गुड्स आर कंसर्न जीरो है, बल्कि गिर रही है साल पर साल। डू वी अंडरस्टैंड दिस? अच्छा, अब ये भी तो हो सकता है क्या, इफ यू वांट फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स टू बी ब्राइट, तो व्हाट डू यू नीड टू डू? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन इंक्रीज करते और हैं। और क्या कम करना पड़ेगा? कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? Consumer कंज्यूमर goods गुड्स will को decrease. करना पड़ेगा। सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट इंडिया डिड। इंडिया में लिविंग स्टैंडर्ड्स पहले, ठीक है, 5-10 साल पहले चले जाएं तो हमसे बहुत वीक थे। पाकिस्तान में बहुत हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स, द रोड नेटवर्क एंड एवरीथिंग, लेकिन व्हाट इंडिया चोज, वो एक ही गाड़ी होती थी, ये टाटा इंडिका और ये छोटी छोटी गाड़ियां। अब वहां ऑटोमेटिकली लोग गए, अब इवन के उनकी अपनी जो टाटा लोकल कंपनीज हैं गाड़ियों वाली, वो कितनी तरक्की कर गई, और हम यहाँ पे जो कि कुछ बना ही नहीं पा रहे। ठीक है, जो बेचारे आ भी गए इन्वेस्टमेंट करके, हुंडई वगैरह रो रहे हैं। तो व्हाट हैपेंड इज, इस कंट्री ने कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन बढ़ाई। अब मसला क्या है इस अप्रोच का? देयर इज अ प्रॉब्लम विद दिस अप्रोच, एंड व्हाट इज दैट? लिविंग स्टैंडर्ड्स, इनके करंट लिविंग स्टैंडर्ड्स पे ऑब्वियसली गिरने ही थे, लेकिन इससे हुआ क्या? कैपिटल बीइंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन
future growth prospects improved. Do we understand this? Is this clear? Anyone who's not clear on this? चलें जी, this is perfect. Now what we need to do is, now we need to practice a bit of MCQs. आज मैं 8 marker नहीं कर रहा because people who are always present there, so I want those people to, you know, उनके सामने मैं जरा 8 मार्कर की प्रैक्टिस करवाना चाह रहा। ठीक है, तो हम इसको करेंगे अगले लेक्चर में 8 मार्कर की तरफ। पीपीसी वी आर डन विद। पीपीसी में हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि हम नहीं कर सकते। ऑलराइट, सो हियर वी आर। टॉपिकल एमसीक्यूज आई होप आपने अभी तक ले लिए होंगे, अगर नहीं लिए हुए तो ले लें एज सून एज पॉसिबल। मोस्टली क्वेश्चंस वी आर ऑलरेडी प्रैक्टिस्ड। मुश्किल क्वेश्चंस भी, आसान वाले भी। ये पेपर थोड़े से जरा आउटडेटेड है, मेरे नए पेपर्स बन रहे हैं जो 2023 ऑनवर्ड्स है, लेकिन दिस इज ऑल्सो गुड हैंडी प्रैक्टिस है। ये भी, ये 15 to 18 का वो है, और ये ज्यादातर मेजॉरिटी एमसीक्यूज हम कर चुके हैं। So we'll end today's lecture and video here.